أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 40 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا حرف ندا ہے۔ بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، اور بنین اور بنون ابن کی جمع ہے۔ ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا۔ اسرائیل ہبرو زبان کا ورڈ ہے، اور اسرا کا مطلب ہوتا ہے عبد یا بندہ۔ ایل اللہ کے لیے آتا ہے، تو اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، عبد اللہ یا صفی اللہ۔ صفی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا چنا ہوا بندہ۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا خلیل۔ تو مراد اس سے یہود و نصارہ ہے۔ ان کو قرآن میں اہل کتاب کہہ کے بھی کہا گیا ہے، بلایا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، اور ان کی حکومت خیبر میں تھی۔ مدینہ میں اوس و خزرج کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، اور ان کی کتابوں میں مدینہ میں آخری نبی کے آنے کی پیشن گوئی موجود تھی، لہٰذا یہ مدینہ میں آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ بنی ویسے تو بیٹوں کو کہتے ہیں، پر یہاں معنی بیٹیاں بھی ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے اولاد یعقوب۔ اذکروا کا روٹ ہے ذکرا، ذکر سے ہے اس کا معنی۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، چاہے کوئی بھولی ہوئی بات یاد دلانا یا بنا بھولے کسی چیز کو یاد کرنا، یعنی دوبارہ اس کو دہرانا۔ یاد دل میں ہوتی ہے، اور زبان پہ جب اس کا اظہار کیا جاتا ہے تو اسے بھی ذکر کرنا کہتے ہیں۔ تو یہاں کہا گیا کہ یاد کرو یا ذکر کرو نعمتی، نعمتوں کا، میری نعمتوں کا۔ یہ جو یا ہے اس سے معنی بنتا ہے میری کا، تو یاد کرو میری نعمتوں کو، التی وہ جو، انعمتو میں نے انعام کیا۔ انعمتو، ہم نے انعمتا پڑھا ہے سورہ فاتحہ میں۔ انعمتا کا مطلب ہوتا ہے تو نے نعمت کیے، اور انعمتو جو تو آ رہا ہے وہ میں نے کا معنی دے رہا ہے، یعنی میں نے انعام، میں نے نعمت کی۔ نعمت احسان کے لیے بھی آتا ہے، یعنی عطا کیا یا بخشش کی اللہ نے۔ ایسا لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد اچانک بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر کیسے آ رہا ہے، لیکن اس کا ایک کنیکشن ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا تھا، وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ جب بھی اللہ کسی کو نبی کے طور پر چنتے ہیں تو وہ اپنی قوم کو نہ صرف اللہ کے احکامات بتاتے ہیں، بلکہ ان احکامات کو فالو کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی جی کر لوگوں کے سامنے ایک مثال قائم کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرنا ممکن ہے۔ وہ لوگ اپنی قوم کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ نبی کی پیروی کیا کرتے تھے، نبی کو بہت کم لوگ مانا کرتے تھے۔ اور اس بار اللہ نے پوری کی پوری قوم کو ایز اے رول ماڈل چوز کیا تھا۔ بنی اسرائیل اللہ کی چنی ہوئی قوم تھی اور دوسری سبھی قوموں کے لیے ایز اے رول ماڈل تھی۔ ان کو اللہ کی احکامات کی پیروی کر کے دنیا کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرنا تھا، اور یہی اللہ ان سے چاہتا تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے 2 طرح کے علم دیے، ایک دنیاوی علم اور ایک دینی علم یعنی ہدایت۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی علم جتنا بھی آج دنیا میں موجود ہے اس کی بنیاد آدم علیہ السلام کا علم ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو بھی چیز ہم سیکھتے ہیں وہ پچھلے علم کے اوپر ہم مزید سیکھتے ہیں، یعنی
चाहे साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सोशियोलॉजी हो या साइकोलॉजी हो, हर इल्म का की बुनियाद होती है नाम और उसकी डेफिनेशन। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाम सिखाए थे और हर एक चीज की डेफिनेशन सिखाई थी कि इसका क्या नाम है और ये क्या चीज है। तो अगर आज हम देखें तो सारे इल्म इसी तरह से चलते हैं, नाम होता है और उसके ऊपर उसकी डेफिनेशन होती है, और जो भी हम सीखते हैं वो पिछले इल्म के ऊपर सीखते हैं। यानी आप समझिए जैसे आज आप कुरान सीख रहे हैं, तो कुरान सीखने के लिए आप ऑलरेडी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जानते हैं और उसी से आप आगे कुरान का ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। यानी पिछला इल्म आपके नए इल्म की बुनियाद है। अगर मैं कहूं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने आसमानों को बनाया, तो आपको पहले से इसका इल्म है कि आसमान क्या चीज है, तभी आप उस पर मजीद इल्म हासिल कर रहे हैं। तो इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम का जो इल्म था वो बुनियाद है आज के हर इल्म के ऊपर। जो भी हम रिसर्च करते हैं, जो भी हम मजीद सीखते हैं या हम किसी चीज को डेवलप करते हैं, तो हम पुरानी अपने इल्म के ऊपर उसे बढ़ा के सीखते हैं। तो ये जो इल्म है इसको कहते हैं एक्वायर्ड नॉलेज। दुनियावी इल्म एक्वायर्ड नॉलेज है, यानी ये अपडेट होती है, चेंज भी होती है, इसमें गलती की गुंजाइश भी है और चेंजेस की गुंजाइश भी है। जैसे पहले कभी हम पढ़ते थे कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लेकिन फिर आगे एक थ्योरी आई जिससे हमने पढ़ा कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो जैसे जैसे रिसर्चेस होती हैं, नई नॉलेजेस आती हैं, पुरानी नॉलेज को अपडेट किया जाता है। दूसरा इल्म जो आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया गया था वो थी हिदायत का इल्म, और इसके बारे में हमें सिखाया गया कि अगर उसकी पैरवी करोगे तो तुम पर ना कोई खौफ होगा, ना तुम गमगीन होंगे। तो ये है इल्म, इल्हाम के थ्रू जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आया है, जो जिसे कहते हैं रेवलेशन। वो थी एक्वायर्ड नॉलेज और ये है रेवलेशन। ये इल्म चेंज नहीं होता है क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से आया है। ये इल्म टाइमलेस है, इसका सोर्स भी टाइमलेस है। तो कुरान जो है वो 1400 साल पुरानी किताब है और इसमें कोई बदलाव नहीं है, और अल्लाह के इल्म में कोई बदलाव नहीं है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, कोई चेंजेस की, कोई अपडेट की गुंजाइश नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है या उनकी बात है, तो उनके हिसाब से इसको अपडेट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो 1400 साल पुरानी बात है और आज के ज़माने के हिसाब से इसको बदल जाना चाहिए। तो उनके हिसाब से ये बात सही है। क्यों? क्योंकि अगर ये शख्स किसी शख्स की तरफ से है इल्म, तो उसमें अपडेट होना ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि ये किताब अल्लाह की तरफ से है, ये कभी आउटडेट नहीं होगी, ये टाइमलेस है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी बात और बताती चलूं कि जो लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, जिनके पास दुनिया की सारी सहूलतें हैं, आराम और नरम आराम के लिए नरम बिस्तर है और बड़े मकान हैं, नौकर हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, ये सब कुछ इन्होंने कमाया है अपनी एक्वायर्ड नॉलेज पे, यानी दुनियावी इल्म के बिना पर ये चीजें इन्होंने हासिल की हैं। और ऐसे लोगों को लगता है कि हमें ये जो रिवील्ड नॉलेज है उसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्हें लगता है कि हमें क्या करना है, हमारे पास तो सब कुछ है। ये दीन के खिलाफ नहीं होते, लेकिन इन्हें ज़रूरत महसूस नहीं होती दीन समझने की और अपनी ज़िंदगी में दीन की नॉलेज एक्वायर करने की, क्योंकि इनके पास जो दीनी जो दुनियावी इल्म है उससे ये खुश है। पर आप बताएं, क्या इन्हें कोई खौफ है, कोई गम है इनकी ज़िंदगी में? जी हाँ, ज़रूर। क्योंकि आप देखें वो जो नंबर 1 एक्टर है या नंबर 1 म्यूजिशियन है, उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ क्या है? ये कि हम सेकंड पोजीशन पे ना आ जाएं, किसी से कम ना हो जाएं हम। और जो चीजें इनके पास है उसमें से अगर कुछ चला जाए तो ये उस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये उस गम को झेलने के लिए अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं
या डिप्रेशन में चले जाते हैं या सुसाइड तक करने की कोशिश करने लगते हैं। सबसे ज्यादा सुसाइडल केसेस ऐसे लोगों में पाए जाते हैं जो बहुत रईस हैं, जो दुनियावी एतबार से बहुत ज्यादा खुश हैं, जिनको देखकर आम लोग सोचते हैं कि हम इनकी तरह बनना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये किसी बुरी सिचुएशन में फंस जाएं या कोई नुकसान इनका हो जाए, तो क्योंकि इन्हें अल्लाह से कोई उम्मीद नहीं होती और ये सोचते हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट है और हर चीज को हम खुद सुधारेंगे अपने बिना, अपने बलबूते पर, तो जब चीजें इनके काबू से बाहर हो जाती हैं तो ये उन चीजों को नहीं झेल पाते, इन्हें इम्पॉसिबल लगती है और फिर ये गिव अप कर देते हैं और ये अपनी जिंदगी से मायूस हो जाते हैं। अगर आपके पास दोनों इल्म है, दुनियावी इल्म और दीनी इल्म, तो एक बैलेंस कायम होगा जिंदगी में। जैसे दीन आपको बताएगा कि हलाल क्या है और हराम क्या है, किस चीज की क्या हद है, और इसके बाद ये नुकसान करेगी आपको या आपके आसपास के लोगों को। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने बनी इसराइल को दोनों इल्मों से नवाजा, दीनी इल्म से और दुनियावी इल्म से। दुनिया में एक नबी के बाद दूसरे नबी आते, लेकिन लोग नबियों को मानते वो बहुत थोड़े होते। जो लोग नबियों को मानते वो बहुत थोड़े होते। तो हर नबी को मानने वाले बहुत कम होते और इतनी बड़ी कौम के पास जब एक रोल मॉडल होता जिसको उनको फॉलो करना होता, तो उनमें से बहुत कम नबी को फॉलो करते और जब कौम नबी की नाफरमानी करती तो और वो हद से बढ़ जाती और फिर उसके बाद वो नबी से मौजिज़े मांगती कि अब मौजिज़े दिखाओ ताकि हम इस बात पर यकीन करें कि आप अल्लाह की तरफ से भेजे गए हो। और जब मौजिज़े देखने के बाद वो झुठला देती, तो अल्लाह का अजाब आता उन पर और पूरी कौम एक साथ खत्म कर दी जाती। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। अल्लाह ने पूरी कौम को चुना था एज अ रोल मॉडल दूसरी सारी कौमों के लिए। इनके बीच में अल्लाह नबी भेजते, फिर उस नबी के बाद दूसरे नबी भेजते, यानी एक के बाद एक नबी इनके बीच आते रहते, किताबें आती रहती और उसके बावजूद ये नाफरमानियां करते, लेकिन इनकी नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह इन्हें सजा नहीं देते, यानी इनकी कौम को अल्लाह ने इस कौम पर अल्लाह ने अजाब नहीं उतारा, बल्कि एक नबी की नाफरमानी करने के बाद इनके बीच दूसरे नबी आ जाते। इनके पास अल्लाह सुब्हान ताला ने दीनी और दुनियावी इल्म दोनों दिए थे और इन्हीं नेमतों की बिना पर ये अपने आप को सबसे बेहतर कौम समझते और इन्हें घमंड था और ये समझते कि ये अपनी बढ़ाई करते और कहते कि हम नबियों की औलाद हैं और हमारे पास अल्लाह ने किताबें उतारी है और हमारे बीच अल्लाह ने नबी उतारे, और ये अपनी बाप दादाओं की नेकियों का बखान करते हैं। और इनके पास तौरात थी और उसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आखिरी नबी के बारे में सारी निशानियां मौजूद थी, अलामातें मौजूद थी। यहाँ तक कि आखिरी रसूल का नाम मोहम्मद होगा और वो मदीना में आएगा, ये भी था। और इसी वजह से ये लोग मदीना में आए थे, आकर बसे थे और आखिरी नबी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि कुरैश में से थे, इन्होंने उन्हें नबी मानने से इनकार कर दिया। और क्योंकि ये उलमा तबके के लोग थे, इनके पास लोग अपने मसले मसाइल पूछने आते थे, इन्हें ऊंचा मकाम दे रखा था, इनके पास एक टीचर का स्टेटस था। अगर ये नबी को, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी कबूल कर लेते तो इनका वो ओहदा चला जाता, इन्हें एक स्टूडेंट की तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना होता था, पढ़ता, और इनका ओहदा तो सहाबी रसूल से भी कम हो जाता क्योंकि वो तो पहले ईमान ले आए थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे चुके थे। अल्लाह ताला इनको खिताब करते हुए कह रहे हैं, ए बनी इसराइल। अल्लाह बनी इसराइल कहकर क्यों खिताब कर रहे हैं? जब किसी को उसके बाप के नाम से बुलाया जाता है तो एक अलग असर होता है। समझें, जैसे आपका नाम सफिया है और अगर आपको कोई सफिया कह के पुकारे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको आपके वालिद का नाम अगर अब्दुल्ला है और कोई कहे कि ए अब्दुल्ला की बेटी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तो इसका एक असर अलग असर होगा।
یہاں آپ کو آپ کے نیک والد کی نیکیوں کا واسطہ دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ تم اتنے نیک باپ کی اولاد ہو، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تو آپ کو اپنی لینیج کا یاد دلایا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بنی اسرائیل کہہ کر پکار رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا یاد دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی اولاد ہو۔ اذکروا، یاد کرو، نعمتی، ان نعمتوں کو، التی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کیا علیکم، تم پر، یعنی جن نعمتوں کے اوپر تم گھمنڈ کرتے ہو، اپنے علم کا گھمنڈ کرتے ہو، اپنے نبیوں کا گھمنڈ کرتے ہو، وہ نعمتیں تو اللہ ہی نے تمہیں عطا کی ہے۔ اور اوفو، پورا کرو، بی عہدی، میرے عہد کو، یا میرا کا معنی دیتا ہے اوفی، میں پورا کروں گا، بی عہدکم، تمہارے عہد کو۔ تو یہاں وعدہ وفا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وعدے کو وفا کرو۔ یہ کون سا وعدہ تھا؟ بنی اسرائیل اپنے رسول کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ لمبے عرصے سے عیسیٰ نبی کے بعد کوئی رسول ان کے درمیان نہیں آئے تھے، اور یہ بہت سی مصیبتوں میں مبتلا تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ہماری مصیبتوں سے، ہماری پریشانیوں سے ہمیں آخری رسول نجات دیں گے، ہمارے بیچ برکتیں آئیں گی، ہمارے بیچ اللہ کے حکم آئیں گے اور ہم ان کی پیروی کریں گے۔ اور اللہ کا وعدہ تھا کہ جو آخری رسول ہوں گے ان کو فتح نصیب ہوگی، وکٹری نصیب ہوگی، وہ کامیاب ہوں گے، اور جو لوگ ان کی پیروی کریں گے وہ بھی کامیاب ہوں گے، ان کو بھی وکٹری نصیب ہوگی۔ تو جب یہ کسی جنگ میں ہار جاتے یا کوئی مصیبت ان پر آتی تو یہ اپنے رسول کو یاد کرتے ہوئے کہتے کہ بس ہمارے آخری رسول آنے والے ہیں، اور اب یہ ساری تکلیفیں ہم سے دور ہو جائے گی اور ہم جیتنے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ یا رب تو اب آخری رسول کو بھیج تاکہ ہم اس کی پیروی کریں۔ تو یہ اس عہد کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب کیونکہ اب آخری رسول آ گئے تمہارے بیچ، تو اب ان کی پیروی کرو، انہیں مانو، اور پھر اللہ بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا، یعنی تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، آخری رسول کو فتح نصیب ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرنے والے، اسلام کو ماننے والے بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے اور انہیں فتح مکہ بھی نصیب ہوئی، اور باقی قوموں پہ بھی نصیب ہوئی فتح، اور بہت سے لوگ اسلام بھی لے آئے۔ تو یہ اسی عہد کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم نے رسول کی پیروی کی تو اللہ تمہیں بھی کامیابی نصیب کرے گا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی نعمتوں کو یاد کرو، ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر نازل کی، اور اس کے علاوہ اپنے عہد کو پورا کرو جو تم نے اللہ سے کیا، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، تم آخری نبی کا ساتھ دو گے، تو ساتھ دو آخری نبی کا، ان کے خلاف نہ ہو جاؤ۔ وَأُوفِي، اور پھر اللہ پورا کرے گا تمہارے ساتھ جو اللہ نے عہد کیا، تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں جنت نصیب کرے گا، اور تمہیں کامیابی نصیب کرے گا۔ وَإِيَّایَ، اور صرف مجھ سے ہی، فَارْحَبُونِ، پس تم ڈرو۔ رہب کہتے ہیں ایسے ڈر کو جو کنٹینیوس ہو، جو ہر وقت رہے، اور رہب شدت خوف کو کہتے ہیں کہ تم نے جو نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تم نبی کی پیروی کرو گے، تم اس کے خلاف ہو، تو اللہ سے بہت 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 ڈرو۔ یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہو کہ تم نبی کے خلاف جا رہے ہو۔ یہ بات قرآن مجید میں ہے، تو قرآن کے ذریعے اللہ ہمیں بھی یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ خطاب بنی اسرائیل سے ہے، لیکن عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھے، یعنی مسلمانوں کو بھی بنی اسرائیل کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرو، جو نعمتیں تم پر کی گئی ہے اس کا شکر ادا کرو، اور سب سے بڑی نعمت جو بنی اسرائیل کو دی تھی وہ تھی ہدایت کی نعمت، اور وہی نعمت مسلمانوں کے پاس بھی ہے۔ آج قرآن کے ذریعے ہمیں بھی ہدایت دی جا رہی ہے، تو اس نعمت کا شکر ادا کرو، اس کی قیمت سمجھو۔ وَأُوفِي، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو عہد کو، یعنی کون سے عہد کی بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم بھی ساتھ دو،
तुम उम्मत रसूल हो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन है उसको पूरा करने में उनकी मदद करो, और फिर अल्लाह तुम्हें भी कामयाबी नसीब करेगा। व इय्या फरहबून, और बस डरो अल्लाह ही से, यानी अल्लाह के मुकाबले और किसी से ना डरो। जो डर होता है वो एक नेचुरल फीलिंग है, हर इंसान डरता है, सांप से डरता है, मौत से डरता है, यानी चीजों से डर लगना एक नेचुरल फीलिंग है। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि डरो अल्लाह से, सिर्फ अल्लाह से डरो, यानी बाकी डर तो नेचुरली इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन जो खुद इंसान को इंटेंशनली करना है वो ये है कि हमें अल्लाह से डरना है। हमारी जिंदगी के बहुत से डिसीजन हम लोगों के डर से लेते हैं, यानी ये क्या सोचेगा, इसको बुरा लग जाएगा, मैं हम अल्लाह के खिलाफ चले जाते हैं लोगों को खुश करने के लिए, कि कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए, वो मुझसे बुरा ना मान ले। लेकिन हमारे हर अमल के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमें सिर्फ अल्लाह से डरना है कि अगर हमने कोई गुनाह किया तो उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे, और इसके और उसका नतीजा भी हमें भुगतना होगा। तो हमें गुनाह से बचना है, और लोगों को खुश करने के लिए या घर वालों को खुश करने के लिए या रिश्तेदारों को खुश करने के लिए हमें कोई गुनाह के काम नहीं करने। दोस्तों को खुश करने के लिए, कई बार हम दोस्तों को खुश करने के लिए भी गुनाह के काम करते हैं। कई बार हम लोगों से डरकर गुनाहों से रुक जाते हैं कि अगर लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन वही गुनाह का काम हम अकेले में कर लेते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। और कई बार हम लोगों से डर के मारे झूठ बोल देते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं डरते कि झूठ बोलकर हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। तो यहां अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वह या फरहबूनी, और सिर्फ मुझसे डरो, यानी लोगों से न डरो, मुझसे डरो। लोगों से डर के गुनाह के काम से ना रुको, बल्कि अल्लाह से डर के गुनाह के कामों से रुको। वह और आमनू, ईमान लाओ, तुम सब ईमान लाओ। ये वाव जो है वो जमा की अलामत है। बीमा, उस पर जो अनजल तू, मैंने नाजिल किया। ये देखें फिर से तू आया है, तू मैंने का माना देता है, यानी मैंने नाजिल किया। मुसद्दिक़न, तस्दीक करने वाला है, लिमा, वास्ते उसके जो, माअकुम, तुम्हारे पास है। यानी कुरान जो है वो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करती है, तुम्हारी किताबों को सही बताती है। कुरान के जरिए ये जाहिर होता है कि तौरात भी अल्लाह ही की तरफ से नाजिल हुई थी। अनजलतु, नजला, नजला इसका रूट है और इसका मतलब है आई हैव सेंट डाउन, मैंने नीचे भेजा। और उसके अलावा मुसद्दिक़ल, सदका, सिद्क, सिद्क कहते हैं सच्चाई को। तो मुसद्दिक़ल वो जो कंफर्म कर रही है, जो ये बात अफर्म कर रही है कि ये किताबें भी अल्लाह ही की तरफ से हैं। सादिक कहते हैं सच्चाई को, सच बोलने वाले को। और सिद्दीक कहते हैं बहुत ज्यादा सच्चे शख्स को, जो बहुत ज्यादा सच बोलता हो, जो हमेशा सच कहता हो। वला तकूनू, और ना तुम हो जाओ, अव्वला, पहले। अव्वल पहले को कहते हैं, उर्दू में भी अव्वल कहा जाता है। काफिरिन, काफिरों में से, इनकार करने वालों में से। बिही, उसका, यानी कुरान का इनकार करने वालों में से ना बन जाओ। ये पर इससे पहले कुरैश कुरान का इनकार कर चुके थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर चुके थे। तो यहाँ क्यों कहा जा रहा है कि तुम पहले काफिरों में से ना बन जाओ। दुनिया की सारी कौमें उस वक्त की बनी इसराइल की तरफ देखती थी कि ये जो है ये लर्नेड कौम है, इनके पास इल्म है, दीनी इल्म है, और हर कौम अपने दीनी मसले मसाइल लेकर इन्हीं के पास आती थी, और ये लोग उनकी रहनुमाई किया करते थे। तो ये उनके लीडर्स की तरह हो गए थे। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि तुम पहले काफिरों में से ना हो जाओ, तुम साहिब इल्म हो, तुम साहिब किताब हो, तुम ना इसको झुटलाओ, क्योंकि तुम अगर इसको झुटलाओगे तो बाकी लोग भी तुम्हें देखकर इसे झुटलाएंगे। और ना तश्तरू, तुम बेचो, खरीदो, तुम लो,
त का माना है यहाँ पे जो प्रीफिक्स का है तुम, और वाव अलिफ जो है वो जमा की अलामत है, यानी तुम सब लो भी आयाती मेरी आयत के बदले। शिरा कहते हैं खरीदो फरोख्त करने को, बेचना, खरीदना या ट्रेड करना। तो आयत के बदले यानी आयत देकर कुछ लेना। समनन कलीला कीमत, समनन कहते हैं प्राइस को, कीमत कलीला थोड़ी। कलील उर्दू में भी आता है, काफ लाम लाम इसका रूट है। कलील यानी थोड़ी, इनसिग्निफिकेंट यानी बिल्कुल मामूली कीमत। तो अल्लाह की आयत के बदले तुम मामूली कीमत ना लो, यानी उससे देकर उसके बदले मामूली कीमत ना लो। जो कुछ भी दुनिया में बड़े से बड़ा भी अगर कोई चीज हासिल हो जाए अल्लाह की निशानियों के बदले में, तो वो आखिरत के मुकाबले में कम ही होगा। और आखिरत का नुकसान है अगर हम अल्लाह की आयतों में कोई बदलाव करें। अपनी किताबों में इन्होंने कुछ बदलाव किए थे जिससे कि ये अपनी बात को कह सके अपने तरीके से, यानी किताबों में कुछ फेरोबदल करके कुछ थोड़े दुनिया के फायदे हासिल करने के लिए किताबों में, अल्लाह की किताबों में बदलाव कर दिया गया था। बहुत सी चीजों को छुपा दिया गया था, बहुत सी नई चीजों को उसमें डाल दिया गया था, और ये काफी अरसे से ये लोग करते चले आ रहे थे। तो इसी वजह से तौरात और इंजील में चेंजेस होने की वजह से ओरिजिनलिटी उसकी चली गई थी। और एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से ये बातों को ट्विस्ट करके, चेंज करके लोगों के सामने रखते कि लोग कंफ्यूज हो जाते कि सच क्या है और झूठ क्या है। जैसे जब कोई इनसे आकर पूछता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सच्चे नबी हैं, कि ये जो शख्स है वो नबी होने का दावा करता है, तो क्या ये सही बात है, और जैसी अलामतें आपने हमें बताई वो इनमें मौजूद है, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं? तो ये उसका ऐसा ट्विस्टेड जवाब देते कि लोग और ज्यादा गुमराह हो जाते। जैसे ये कहते कि नबी तो हैं मगर उम्मियों के लिए, यानी सिर्फ कुरैश के लिए। तो ना इन्होंने ना कहा ना हाँ कहा, यानी सच्चाई के अंदर ऐसा मिलावट की कि सच्चाई ही ना रही। वह और इयाया, सिर्फ मुझसे, फत्तकूनी, पस डरो मुझसे। तो तकवा इसका रूट है, और तकवा का मतलब होता है अल्लाह से डरना और परहेजगारी करना, गुनाहों से बचना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ईमान लाओ उस पर जो मैंने नाजिल किया, यानी कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये तस्दीक करने वाले हैं, ये सच साबित करने वाले हैं उसको जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। तौरात और इंजील में जो बातें हैं उसको सच साबित करता है कुरान। और ना तुम हो जाओ पहले काफिरों में से, पहले इनकार करने वालों में से उसका, यानी कुरान का। और ना तुम बेचो या ना तुम खरीदो आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत लो, ना तुम आयतों को दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए इसका सौदा करो, यानी ना तुम इसमें से कुछ छुपाओ, ना तुम इसके अंदर फेरबदल करो। तुम आयतों को अपने फायदे के लिए ना इस्तेमाल करो, और जो कुछ भी फायदा दुनिया का है वो आखिरत के मुकाबले बहुत कम है। और मुझसे डरो, ऐसा करने से रुको, ऐसा करने से बचो और अल्लाह से डरो। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे खत्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please don't forget to like it and share it with others so they too can benefit inshallah. Your comments and feedback are valuable to us, so do share your thoughts below. And if you haven't already, subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates on Quranic insights and Islamic reminders. Remember, every small effort in spreading beneficial knowledge is counted as Sadaqah Jariyah, continuous charity.
Jazakumullahu khairan kasira for your support and dua.